ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ سنیچر کے دن ہم آپ کے سامنے جو حاضر ہوتے ہیں، جس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو بھی ساتھی سوالات کرتے ہیں انہی سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوتا تھا، لیکن آج میں نے اس کو اسکپ کر کے آج جو ہے سمجھیے کہ بہت ہی اہم انفارمیشن جس کی بہت دنوں سے بہت سارے ساتھیوں کو انتظار تھا، تو وہ انتظار کا وقت اور انتظار کی گھڑی جو ہے ختم ہو چکی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر نیو ایڈمیشن، نیو فارم بھرنے کی تاریخ کا اعلانات 2025-26 جو داخلہ ہوں گے اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس سال سمجھے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو ہے ایڈمیشن کے تعلق سے کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا اصول و ضوابط ہیں، اسی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اعلان برائے جدید داخلہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ نیو داخلے کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء و معاہد دارالعلوم سکروری، یہ دونوں کے اعلانات ہیں اس میں۔ اور معاہد دارالعلوم سکروری کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا، یہ ندوہ کا چھوٹا بھائی سمجھ لیجیے، وہی اسی کے تعلق سے لکھے ہیں کہ تعلیمی سال 1446-47 مطابق 2025 سے 2026 کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آن لائن داخلہ فارم ویب سائٹ www.nadwa.in پر مورخہ 12 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 11 فروری 2025 سے پر کیے جائیں گے۔ اس مرتبہ تاریخ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا کتنے 12 شعبان، اور آج جو آپ کو 6 یا 7 شعبان ہو چکا ہے میرے حساب سے شاید، تو اور 11 فروری تو آج سمجھیے کہ 8 فروری کی تاریخ آج کے جو ڈیٹ ہے، تو مشکل سے 8 9 10 11 3 دن باقی ہے، آپ لوگ تیار رہیے گا سے پر کیے جائیں گے، یعنی کہ آن لائن فارم بھرنے کا جو ہے تاریخ شروع ہو جائے گی 11 فروری سے، اور 3 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 4 مارچ 2025 کو فارم پر کرنے کی سہولت ختم کر دی جائے گی، یعنی 11 فروری سے لے کر کے 4 مارچ تک اس کے بیچ میں آپ فارم جو ہے بھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کن کن درجے کے لیے فارم بھریں گے اس کی لسٹ نیچے دے دیں۔ نمبر 1، عالمیت ادب یعنی عالیہ ثالثہ ادب، تکمیل ادب میں داخلے کے شرائط۔ عالمیت جو ادب ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ عالیہ ثالثہ ادب، عربی ادب جو ہم نے بتلایا تھا اس میں تکمیل ادب میں داخلے کے شرائط ہیں۔ نمبر الف، کسی معروف ادارہ سے، معروف کی معنی اچھے خاصے جانا مشہور مدرسہ، ادارہ سے دورہ حدیث فضیلت کی سند حاصل کی ہو۔ شرائط غور سے سنیے گا، دورہ حدیث یعنی فضیلت کی سند ان کے پاس حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ با، مذکورہ درجات میں داخلہ کے لیے تحریری ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد تقریری ٹیسٹ ہوگا۔ جی اس مرتبہ پھنس جائیے گا، اس مرتبہ 2 ٹیسٹ ہیں، ایک تحریری ہے، تحریری مطلب لکھنے والا، اور تقریری مطلب سامنے بیٹھا کے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی فارم پر کرنے کے بعد مدرسہ کا تصدیق نامہ، مارک شیٹ، اپنا اور سرپرست کا آدھار کارڈ بھی منسلک کریں۔ جب آپ فارم پر کریں گے تو سب سے پہلا مدرسے کا تصدیق نامہ ہونا چاہیے۔ تصدیق نامہ اس کو کہتے ہیں کہ مدرسے والا لکھ کے دے کہ انہوں نے میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے، 10 سال 5 سال 6 سال جو بھی ہو،
اور मार्क शीट ये दोनों कंपलसरी है। अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड भी वहां पर मुंसलिक करा नहीं लगा है। ठीक है। दाल तहरीरी टेस्ट जो होगा 14 अप्रैल, गौर से सुन रहे हैं, 14 अप्रैल 2025 2 शंबा को होगा। कितने शंबा को? 2 शंबा को। ठीक है। नंबर 2 खुसूसी अव्वल खुसूसी दोम उर्दू अरबी में दाखिले के शराइत हस्बे झेल होंगे। ठीक है, गौर से सुनिएगा सब लोग। अलिफ खुसूसी अव्वल व दोम में दाखिले का अहल वही होगा, यानी वही तलबा खुसूसी अव्वल खुसूसी दोम में दाखिले के लिए उनका दाखिला होगा जिसने सूबाई सेंट्रल बोर्ड से 12वीं, जो सूबा जो होता है जैसे कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड और भी जितने भी सूबा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ के सेंट्रल जो बोर्ड होता है, बोर्ड से 12वीं यानी इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करके कामयाबी हासिल की हो, यही तलबा खुसूसी अव्वल खुसूसी दोम में एडमिशन ले सकते हैं। गौर से सुनिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी आपको। बा उर्दू पढ़ना लिखना आता हो, उर्दू रीडिंग उर्दू राइटिंग दोनों आता हो सही तरीके से अच्छे अंदाज में। ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करने के बाद हाई स्कूल और इंटर कामयाब मार्क शीट टीसी अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड स्कैन करके मुंसलिक करना होगा। बहुत सख्त इस मतलब लग रहा है कि कुछ चेंज हुआ है जी, तो याद रखिएगा, फिर से सुना हम बता रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करने के बाद हाई स्कूल का और इंटर कामयाब मार्क शीट, ठीक है, टीसी अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड स्कैन करके मुंसलिक करना होगा। उसके बाद है दाल टेस्ट के लिए SMS यानी कि SMS मिलने पर ही ओरिजिनल कागजात लेकर आएंगे। जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपके मोबाइल पर क्या है, मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा तभी आप नदवा ओरिजिनल कागजात लेकर पहुंचे। ठीक है। हाँ, सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा अपना रिहायशी या पुलिस टिकट लेकर के आए। जी, सरहदी इलाका में समझते हैं कि आजू बाजू के जो इलाका है उसके जो तलबा हैं वो तलबा यहाँ रुकने के लिए जो है अपना रिहायशी या पुलिस का जो है एक सर्टिफिकेट लेकर के आए। जी, बहुत सख्त है। उसके बाद है वाव मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट से सिर्फ सानवी दर्जात यानी माहद सिकरौरी में टेस्ट के बाद दाखिला होगा। मदरसा बोर्ड समझते हैं ना, उस्तानिया फौकानिया मौलवी, इस पर तो ये सानवी दर्जात के यानी कि नीचे दर्जात के माहद सिकरौरी में टेस्ट के बाद दाखिला होगा, खुसूसी में नहीं होगा। इसलिए जो लोग समझते हैं कि बिहार बोर्ड का लगा दें मार्कशीट या उस्तानिया फौकानिया का तो हमारा खुसूसी में हो जाएगा, नहीं होगा, नीचे क्लास में होगा। वो भी दर्जा सानिया मतलब सानिया 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 अराबिया सानिया सालिसा जो आलिमियत का जो कोर्स होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद है तहरीरी टेस्ट खुसूसी अव्वल वालों का, दो वालों का जो तहरीरी टेस्ट होगा वो 14 अप्रैल, ठीक है, 2025 2 शंबा को होगा, नहीं दोनों के साथ में ही होगा। ठीक है। ये हो गए आलिमियत अरबी अदब खुसूसी में एडमिशन लेने वाले तलबा के जो है ये इतने सारे शराइत हैं, याद रखिएगा इसको। दर्जा हिफ्ज में दाखिला के शराइत। अब जो तलबा नज़ले के अंदर दर्जा हिफ्ज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो गौर से सुने। अलिफ हिफ्ज में दाखिले के लिए 3 पारे हिफ्ज होना जरूरी है। कितने पारे? 3 पारे का हिफ्ज होना जरूरी है। बा हिफ्ज में दाखिले के लिए उम्र 10 से 13 साल के दरमियान होनी चाहिए। 10, 11, 12, 13 इसके दरमियान में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण करने के बाद जिस मदरसा से या उस्ताद से हिफ्ज किया है उस इदारे या उस्ताद की तस्दीक नीज अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड स्कैन करके मुंसलिक करें। जब आप फॉर्म पूर्ण करेंगे तो वहां पर आप अपने उस्ताद का
या मदरसे का तस्दीक नामा जो है और अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड स्कैन करके वहां मुंसलिक करें। ठीक है। दाल, फॉर्म में जिक्र किए हुए पारों का टेस्ट 14 अप्रैल 2025 दोशंबा को होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे हिफ्ज वाले तो वहां पर फॉर्म में नीचे लिखा आएगा कि इतने पारे का जो है यानी कि टेस्ट होगा। जो जो पारे इसमें लिखे होंगे उसके जो है पारों का टेस्ट जो है 14 अप्रैल 2025 दोशंबा को होगा। ठीक है। हाँ, टेस्ट के लिए SMS मिलने पर ही ओरिजिनल कागजात लेकर के आएंगे। ये हो गया नदवे के ताल्लुक से। अब जो है माहद दारुल उलूम सिकरौली, ठीक है, दर्जा हिफ्ज व सानवी दर्जात में दाखिले के शराइत। अब जो बात हो रही है नदवे के छोटे भाई की बात हो रही है, यानी माहद दारुल उलूम सिकरौली की बात हो रही है। वहां पर क्या क्या शराइत है। अलिफ, दर्जा सानविया उला में पंजुल मकतब या प्राइमरी दर्जा तक किसी भी स्कूल से कामयाब होने वाले तलबा ही ऑनलाइन फॉर्म पुर कर सकते हैं। ठीक है। बा, सानविया सानिया, सानविया सालिसा, सानविया राबिया व सानविया खामसा के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, आप लोग फॉर्म भर लें। जो लोग इब्तदाई तालीम हासिल करना चाहते हैं नदवे के छोटे वाले भाई में, यानी कि छोटे मदरसे में, महल सिकरौली में, तो आप इन दर्जात में जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। खुसूसी माहद में दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस के हिफ्ज मा दौर से फारिगीन तलबा ही दाखिला ले सकते हैं। क्या है, खुसूसी माहद में जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस के हिफ्ज मा दौर से, यानी दौर भी किया हो, फारिगीन तलबा ही दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, शराइत सुन लीजिए। दाल, माहद दारुल उलूम नदवतुल उलमा सिकरौली में भी शोबा हिफ्ज में दाखिले के लिए 3 पारों का हिफ्ज होना क्या है, जरूरी है। ठीक है। हाँ, मज़कूरा दर्जात में दाखिला फॉर्म पुर करने के लिए तालिब इल्म का अपना और सरपरस्त का आधार कार्ड, नीज साबिका मदरसे का यानी पहले वाला मदरसे का तस्दीक नामा भी मुंसलिक करना जरूरी होगा। ठीक है। वाव, सानवी दर्जात के लिए तहरीरी टेस्ट जो है 14 अप्रैल 2025 दोशंबा को होगा। ठीक है। अब नीचे लिखे हैं नोट, देखें, तमाम तलबा दाखिला फॉर्म पुर करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि तमाम मालूमात जैसे नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह सही हो। स्पेलिंग वगैरह अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें। ठीक है। वालिद या सरपरस्त का मोबाइल नंबर सही होना जरूरी है। अगर ऑफिस से कॉल करने पर नंबर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। जी, दाखिला से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए मोबाइल नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। सुबह 8 से 1 बजे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आप कुछ और मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा। सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक फ़ोन करके आप अपने मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इतने सारे शराइत इस साल दारुल उलूम नदवतुल उलमा और महद सिकरौली के अंदर एडमिशन लेने के शराइत हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप कॉल करके डायरेक्ट जो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। और आज की वीडियो जो समझिए वही यही है कि नदवे के ताल्लुक से जो इन्फॉर्मेशन अभी नदवे ने ऐलान निकाला है तो मैंने आपके सामने हाजिर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।